Morning readers, and today this time we study about a little content of human digestive system, that is dental caries. Okay, teeth, which is found in buccal cavity, जो हम लोग के बक्कल कैविटी में पाया जाता है। मैंने बताया था कि टीथ के ढेर सारे जॉब है। ये फिजिकल जॉब भी करता है, बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है, फिजिकल डाइजेशन। फिर ये ग्राइंडिंग का काम करता है, भोजन को जो है ये पिसता भी है, भोजन को जो है ये पकड़ के भी रखता है, भोजन को, फूड को जो है बक्कल कैविटी में जो मूवमेंट चाहिए उस मूवमेंट में भी सहायता करता है। तो वी कैन इमेजिन हाउ फार टीथ आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। ओके, अब हम लोग टीथ के एक टूथ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लुक एट द बुक। टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग के जीवन में ये दो बार आते हैं। इट कम्स इन 2 टाइम्स। दो बार ये हम लोग की जिंदगी में अपीयर होते हैं। जैसे पहला मिल्क टीथ। Milk teeth, such type of teeth appears just after 6 months of a baby। ठीक 6 महीने का जो बेबी होता है उसमें ये दांत पहली बार निकलना चालू हो जाता है। ऐसे दांत को कहा जाता है मिल्क टीथ, और ये टीथ जो है करीब 6 to 8 years, maximum 10 years तक ये दांत रहते हैं। मिल्क टीथ इनकी संख्या जो होती है, इट्स नंबर इज ओनली 20। ये इनकी संख्या 20 होती है, जिनमें से 10 दांत अपर जॉ में और 10 दांत लोअर जॉ में ये पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या 20 होती है, 20। ऐसे दांत को कहा जाता है मिल्क टीथ। फिर इस एज को क्रॉस करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग दिस एज 6 to 8 और 6 to 10 ईयर्स, इसके बाद ऑटोमेटिकली ये दांत जो है धीरे धीरे जो है स्टेप बाय जो है ये गिरना चालू हो जाते हैं। ये गिरते चले जाते हैं और इसके बाद अब जो दांत आता है उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। Okay, permanent teeth comes after following the milk teeth. This is permanent। अब इसमें अंतर ये है कि ये दांत जो होता है वीक होता है, कमजोर भी होता है। ठीक, ये दांत जो होता है काफी स्ट्रांग होता है।
ये दांत it persists throughout the life in human body. ये ह्यूमन के बॉडी में जो है ये जिंदगी भर रहता है। ये एक अलग बात है, कुछ गलत हैबिट्स या किसी और कारण से ये दांत टूटते चले जाते हैं, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग रहता है। ऐसे दांत को कहा जाता है परमानेंट टीथ। ओके, ये परमानेंट टीथ अ मिल्क टीथ, दैट मीन्स there are two sets of teeth are seen in human life. ऐसे दो प्रकार के जो सेट है दांत का, तब इसको कहा जाता है डाइथायोडॉन। Diphyodont. That means two sets of teeth in human body, and this condition, this stage is known as diphyodont. Number one, as चूंकि हम लोग का दांत जबड़े में, तो सॉकेट इन द बोन्स का जो सॉकेट है गड्ढे में जो है ये फिक्स रखते हैं। Teeth are embedded in the socket of jaw bones. That's why they are known as thecodont. Thecodont. That means the teeth which are embedded in the sockets of jaw bones is known as thecodont. Two sets of teeth is known as diphyodont. Two terms. And third terms, we should know that heterodont, H-E-T-E-R-O, heterodont. Heterodont means there are various kinds of teeth, their structure and their functions. Those teeth which are not similar in their shape, size and in their functions also, and such type of teeth is known as heterodont. Okay, so heterodont. So just we learned about diphyodont, two sets of teeth, thecodont, the teeth which are embedded in the sockets of jaw bones, and third one, that is heterodont. That means they are different in shape and size and also function. Okay, now permanent teeth in adult. हम लोगों में परमानेंट टीथ जो आता है सेकेंड सेट, इनकी संख्या होती है 32। इनमें से 16 teeth in lower jaw and 16 teeth in upper jaw. Okay, 32. Do we know our permanent teeth
has been divided according to their presence. Between them, 16 teeth are present in lower jaw, whereas 16 teeth are present in upper jaw. So such type of teeth, lower jaw, it is known as mandibular teeth. Mandibular teeth. The teeth which are present in lower jaw is called mandibular teeth. Similarly, the teeth which are present in upper jaw, which is known as maxillary teeth. Maxillary teeth. Okay? Any confusion? Mandibular teeth, the teeth which are present in lower jaw. The teeth which are present in upper jaw is known as maxillary teeth. Okay? Now we discuss about the parts of a tooth. A typical structure of a tooth. Okay? Tooth. This is a tooth. This portion which is visible, जो दिखलाई देता है सफेद रंग का, और कुछ पार्ट गम्स के अंदर में जो है धंसे रहते हैं. Some parts is embedded in gums, also in the socket. Okay? कुछ पार्ट मतलब 2/3. ये जो तीसरा जो है हिस्सा जो है ये गम्स में, दैट इज गम्स. ये गम्स है. गम, GUM, गम, GUM, गम. 3 हिस्सा एक दांत का इस गम्स के अंदर रहते हैं और 2 हिस्सा जो है गम के बाहर दिखाई देता है. हम चमकता हूं व्हाइट. ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है क्राउन. CROWN, क्राउन. और ठीक इसके नीचे का जो पार्ट है बीच का, ये जो पार्ट है दैट इज रूट. ठीक. और क्राउन और रूट का जो बीच का जो पार्ट है यहां पर दिस पोर्शन, इसको कहा जाएगा नेक. तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज नेक. ओके? तो a tooth has been divided into 3 parts. Among them, first that is crown, second one neck, and third one that is root. ये 3 भागों में बांटा हुआ है एक दांत. अब ये जो पार्ट है क्राउन, नेक और रूट, इसमें 3 लेयर है. इसको याद अच्छा समझिएगा. ये जो है क्राउन, नेक और रूट, इसके ऊपर में 3 तरह का लेयर्स पाए जाते हैं. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स आर फॉर्म
just above the tooth. ओके, कौन कौन सा है? ये क्राउन, ये नेल के पास, दैट इज डेंटाइन. क्राउन का जो ऊपर पार्ट है, ऊपर जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, दैट इज इनेमल. Enamel, that is the first part, and second part, that is dentin. Dentin. And third part, that is the cementum. Cementum. Cementum, T-U-M, cementum, सीमेंट के जैसा काम करता है, cementum. तो enamel, dentin and cementum, these are the three layers of a tooth. ठीक, ये enamel के बारे में हम पढ़ेंगे. Enamel is the outermost covering layer of crown, जो हमको दिखलाई देता है. ये लेयर जो है इनेमल, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ है. एंड इट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी. ये पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कड़ा और मजबूत पार्ट जो है इनेमल है. और ये रक्षा करता है दांत के सभी हिस्से का, ये प्रोटेक्ट करता है इनेमल. इनेमल के बाद दूसरा जो पोर्शन है, दैट इज डेंटाइन. डेंटाइन का जो लेयर है, जो मैंने भी बताया, सेकेंड लेयर, दैट इज डेंटिन. डेंटिन जो है, इट इज द second highest part, stronger part in our body. इनमें के बाद दूसरा जो मजबूत जो पार्ट है, that is dentin. ये जिस लेयर से ढका हुआ है, उसको कहते हैं डेंटिन. ये इसकी तुलना हम लोग बोन से कर सकते हैं. We can compare this dentin with bone. ये बोन के जैसा मजबूत होता है. ये हो गया डेंटाइन और डेंटिन. और थर्ड लेयर, दैट इज सीमेंटम. सीमेंटम क्या करता है? इस दांत को, अब गम्स को, या दांत का जो रूट है, सॉकेट में, इसको ये फिक्स करता है. सीमेंटम इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स ए टूथ विद द गम, विद द शाफ्ट. ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस लेयर. First enamel, second dentin, third one cementum. Okay. Now, पहला जो पार्ट क्राउन का इनेमल मैंने बताया, दूसरा डेंटाइन. अब थर्ड पार्ट, ये जो लेयर देख रहे हैं, दिस स्पेस जो ठीक डेंटाइन के नीचे है, इट इज जस्ट फाउंड बीनीथ द डेंटाइन. ये डेंटाइन के ठीक नीचे है. इस लेयर को कहा जाएगा पर्ल कैविटी. पर्ल कैविटी. इट इज पर्ल, P-U-L-P, पर्ल कैविटी. ओके, you remember the first layer part is enamel, second part that is dentin, and third part that is पर्ल कैविटी. इस पर्ल कैविटी में ढेर सारे इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है. इसको लिख लीजिए. नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यूज. नंबर 2 में ब्लड वेसल्स, and third one, that is nerves.
In pulp cavity, connective tissues, blood vessels and nerves, they are found in pulp cavity. ओके, तो मैंने आपको एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में बता दिया। अब कुछ हम लोग को जानना है कि डेंटल कैरिज क्या है, डेंटल प्लाक क्या है, और टूथ एज मतलब दांत का दर्द कैसे होता है। ओके, डेंटल कैरीज और डेंटल डीकी, डेंटल डीकी क्या है? हम लोग के मुंह में इन आवर बकल कैविटी हम लोग के बकल कैविटी में मैंने आप लोग को पढ़ाया था सैलिवा में इंजाइम है, इसको कहा जाता है अमाइलेज। अमाइलेज, ये अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को मतलब शुगर, इसको ये तोड़ देता है माल्टोज में। ठीक, हम जो भोजन खाते हैं माउथ के अंदर में, वो भोजन का पीस अगर उसमें ये सलाइवा, ये अमाइलेज नहीं मिला, याद रखिएगा, और ये टुकड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट का आपके दांत के किसी भी कोने में जाके अगर रह गया तो माउथ के अंदर में जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन योर माउथ, वो क्या करता है? वह फूड जिसमें ये अमाइलेज नहीं मिला तो उस फूड में क्या करता है? ये एसिड कॉलिंग बैक्टीरिया इस फूड को जो है को ये फीड करते हैं और इससे जो है ये एसिड उत्पन्न करते हैं। कौन? एसिड कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसके द्वारा दांत में छोटे छोटे ये इनेमल जो है, ये इनेमल जो है ये डैमेज हो जाता है। डेंटाइन ये भी डैमेज हो जाता है और छोटे छोटे कैविटी, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं एकदम काले रंग के। ये गड्ढे जो है दिखाई देते हैं ब्लैक कलर, ब्लैक होल्स। इसी ब्लैक होल्स को कहा जाता है डेंटल कैविटी। तो डेंटल